Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 4. In the previous video I will explain to you the Lewis structure of the some molecules here. Now it's the second part of this chapter, and today we are going to discuss about some example based on the Lewis structure. The first is the structure of the CO molecules. How could we write the Lewis dot structure of CO molecules? Then the first is count the total number of the valency electron of the carbon and the oxygen atoms. The outer shell configuration of the carbon and the oxygen atoms are the 2s2 2p2 and the 2s2 2p4 respectively. The valence electron available are 4 plus 6 is equal to 10. Now the skeletal structure of the CO is written as CO. Step 3, draw a single bond, one share electron pair between the C and O, and complete the octet on O, and the remaining 2 electrons are the lone pair of carbon. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, कार्बन और ऑक्सीजन जो है उसको हमें सेंट्रल के अंदर रखना है. अब जो कार्बन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं हम उसको शो करेंगे. देन आफ्टर जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे. तो ऑक्सीजन में हमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलते हैं. तो इनमें से जो 4 हैं वो तो पेयरिंग में जाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की फॉर्म के अंदर हमें शो करने होंगे. तो देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट है. Now the next is the nitrate ion NO2. Lewis structure of the nitrate ion. The solution is in this step 1, count the total number of the valence electron of the nitrogen atom, the oxygen atoms, and the additional 1 negative charge equal to the 1 electron. So the N is equal to 2s2 2p3 and O 2s2 2p4 is equal to 5 plus 2 2 into 6 plus 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से करेंगे हम. नेक्स्ट द स्टेप 2, द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द NO2 इज रिटन एज ONO. नाउ द स्टेप 3, द ड्रॉ अ सिंगल बॉन्ड आयन शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द ईच of the oxygen atom completing the octet on oxygen atoms. This however does not complete the octet on the nitrogen if the remaining 2 electrons constitute lone pair on it. Hence we have to resort of the multiple bonding between the nitrogen and the one of the oxygen atom, in this case the double bond. This lead to be the फॉलोइंग लुइस डॉट स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से हम इसे शो करेंगे. एन और ओ के बीच में एक जगह हम डबल बॉन्ड जो है वो शो करेंगे और जो सेकंड ओ है ऑक्सीजन है उसके बीच में हम 1 बॉन्ड जो है वो क्रिएशन दिखाएंगे. और इस तरीके से उसका जो डायग्राम होगा, जो डॉट स्ट्रक्चर है वो हम एक्सप्लेन करेंगे. नाउ व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन एन isolated or free state and the number of the electrons assigned to that the atom in the Lewis structure. Formula of the calculating formal charge is formal charge on an atom Fc is equal to total number of the electron in the free atom that the minus total number of the non-bonding lone pair electrons minus half total number of the bonding electrons. तो इस तरीके से जो फॉर्मल चार्ज है उसको हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, और जो O3 है ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से शो होता है. और यहाँ पर जो सेंटर के अंदर ऑक्सीजन है वहाँ पे प्लस आयन और साइड में जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव आयन शो किया गया है. द सेंट्रल एटम मार्क्ड एज 1 ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला वी गेट 6 minus 2 देन हाफ 6 इज इक्वल टू प्लस 1. जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तब जाके हमें ये जो आंसर है वो मिलता है. द एन एटम ऑफ द मार्क्ड एज 2 ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला वी गेट 6 minus 4 minus half multiplied by 4 is equal to 0. The n atom marked as 3 on applying the formula we get 6 minus 6 half multiplied by 2 is equal to 1. Generally the lowest energy structure of the one with the smallest formal charge on the atom. The formal charge is the formal charge is a factor based on a pure covalent view of the bonding in which electron pairs are shared equally by the neighboring atoms.
सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल की क्या क्या कमियां हैं इसकी. द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम. इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8. This is the especially in the case of the elements having less than the 4 valency electron. Example lithium chloride and BeS2. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ ऐसे भी सेंट्रल एटम्स होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना. जैसे कि लिथियम जो है उसमें क्या होगा, वो जो 6-7 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करके तो कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इनर के अंदर आ गए, आउटर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो इतने इलेक्ट्रॉन वो गेन तो कर नहीं सकता, तो फिर वो क्या करता है, अपना आउटर का एक इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट कर देता है. तो वहाँ पे ऑक्टेट रूल जो है वो नहीं फॉलो किया गया है. द ऑड एलिमेंट्स molecules. In molecules with an odd number of the electron with nitric oxide NO and the nitrogen dioxide NO2, the octet rule is not satisfied for all the atoms. ये जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स ऑड नंबर्स में होते हैं वो ऑक्टेट रूल जो है वो वहाँ पे पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो पाता. द एक्सपेंडेड ऑक्टेट एलिमेंट्स इन द बॉन्ड beyond of the third period of the periodic table have apart from a 3s and the 3b orbitals. 3d orbitals also available for bonding. In a number of the compounds of these elements there are a more than 8 valency of the electron around the central atom. This is termed as a expanded octane. तो expanded octane के बारे में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि जो कि सेंट्रल एटम के रूप में हैं और वहाँ पर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है अराउंड द सेंट्रल एटम वो 8 से ज़्यादा है. तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है हमारा कि सल्फर ऑल्सो फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेन. इन सल्फर डाइक्लोराइड द एस एटम हैज़ एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड 8. यदि हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर को ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हमें इस तरीके से शो करना होता है. लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, और क्या लिमिटेशन है. इट इज़ क्लियर दैट द ऑक्टेट रूल इज अ बेस्ड अपॉन द केमिकल इंटरनेस ऑफ द नोबल गैसेस. ये तो पूरी तरीके से हमें समझ में आ गया कि जो ऑक्टेट रूल है वो केमिकल जो इंटरसेंस हो रहे हैं उसी के अंदर लागू किया जाता है. सम नोबल गैसेज example xenon and the krypton also combine with the oxygen and the fluorine to form a number of the compounds like xenon difluoride, krypton difluoride, xenon ऑक्सोफ्लोराइड. तो इस तरीके से जो कंपाउंड हैं वो भी बनते हैं. तो हमने ये पढ़ा है कि भाई जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं ना, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है. लेकिन जिनॉन और क्रिप्टॉन के केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इनके कंपाउंड होते हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपाउंड बना रहे हैं. तो फिर जो ऑक्टेट रूल के बारे में हमें बताया गया था वो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता. दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूल की शेप को नहीं समझाती है. इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग अ टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूल्स की शेप को नहीं बताती और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की वो भी नहीं शो करती है. नाउ द नेक्स्ट इज आयनिक और द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. फ्रॉम द कॉजल एंड द लेविस ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज फॉलोज दैट द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स विच प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन the ins of the formation of the positive and the negative ions from the respective neutral atoms. The arrangement of the positive and the negative ion in the solid, that is the lattice of the crystalline compound. तो आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि इसके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं. जैसे हम NaCl की बात यदि करते हैं तो NaCl हमें किस फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है. द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स आयोनाइजेशन, removal of the electron from the neutral atom, and that of the negative ion involves the addition of the electron to the neutral atoms. तो यदि हम M कोई भी जो एलिमेंट है हमारा वो हमने लिया है जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है देन M प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ये X कोई भी हेलोजन जो है वो हमने लिया है तो वो X प्लस आयन की फॉर्म में है. इलेक्ट्रॉन जो निकलता है तब X माइनस आयन की फॉर्म में आ रहा है और X और M जब आपस के अंदर मिलते हैं तो XM का एक न्यू मॉलिक्यूल बनता है. द इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी del EgH is the enthalpy changes when a gas phase atom in this ground state gain of the electron
in electron gain process and the process may be made exothermic और endothermic। ठीक है, जो अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एनर्जी को एब्जॉर्व करके जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से किसी भी इनिशियल स्टेट के अंदर चला जाता है, और ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों ही तरह का हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में आयनिक बॉन्ड will be formed more easily between the elements in the comparatively low ionization enthalpies and the elements will comparatively high negative values of the electron gain enthalpy। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत जल्दी ही बन जाते हैं, बहुत ईजिली बन जाते हैं। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव अ कैटायन derived from a metallic elements and the anions from a non-metallic elements। The ammonium ion NH4 ion is in the acceptations। इट फॉर्म्स कैटायन विद अ नंबर ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो कैटायन एनायन फॉर्मेशन के अंदर वो कन्वर्ट होता है, लेकिन NH4 जो है वो इसका एक्सेप्शन है। इट फॉर्म्स कैटायन विद अ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये कैटायन को फॉर्म करता है। In ionic solids, the sum of the electron gain enthalpy and the ionization enthalpy may be the positive, but still the crystal structure gets stabilized due to the energy released in the formation of the crystal. Lattice, for example, the ionization enthalpy for sodium plus ion formation from a sodium is the 495.8 kilojoule mole, while the electron gain enthalpy for the change is chlorine positive plus electron chlorine minus ion is the 348.7 kilojoule mole only. The sum of the two 147.1 kilojoule mole is more than the compensates for by the enthalpy of the lattice formation of the sodium chloride and the energy release in this process more the energy absorbed। तो ये जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है जबकि उन्होंने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसकी तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लैटिस एंथैल्पी एंड दिस टॉपिक आई विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।